Hello and a very good morning to all of you. Today we are on lecture series for class 12th. Today we are on lecture series for class 12th and in the previous lecture we studied about colligative property. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने colligative property के बारे में बात की थी. Today we will look forward to a new topic that is abnormal molecular mass. Remembering from the last lecture student, आपको पता है कि colligative property किस चीज पे डिपेंड करती है? It depends on the number of the solute particles. इस चीज को याद रखना. The solutes which we consider during the discussion of colligative property, they are non-electrolytic in nature. It means they do not associate or dissociate when they are dissolved in the solvent. But if the solutes are, for example, KCl, H2SO4, C6H5COOH, they are electrolytic in nature. So these solutes either associate or dissociate when dissolved in the solvent. So they either associate or dissociate in the solvent. Now you will ask that what is the relationship between the association or dissociation of these solutes and the abnormality in the molecular. इनके association या dissociation से molecular mass पे फर्क क्यों पड़ता है? See, we will take an example of dissociation. See, in case of dissociation, if we are taking the example of KCl, per mole of KCl it is generating 2 moles of ion, that is K plus and Cl minus. You are knowing that, आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे. पर मोल ऑफ KCl 2 मोल ऑफ आयन जनरेट हो रहे हैं, मतलब यहाँ 1 था और यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने हो गए? 2, मतलब डबल. सो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो बिकम्स डबल. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी वैल्यू डबल हो जाएगा. बट रिमेंबर स्टूडेंट, द मोलिकुलर मास is always inversely proportional to the value of colligative property. It means that when the value of colligative property becomes double, colligative property अगर double होगा तो molecular mass क्या हो जाएगा? Molecular mass becomes half. इसका मतलब ये कि जो हम actual mass expect करते हैं, जैसे KCl का actual molar mass कितना होना चाहिए? 74.6 ग्राम पर मोल लगभग होना चाहिए. बट द एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास आफ्टर इट्स डिसोसिएशन इन द सॉल्वेंट कम्स टू बी 37.5 ग्राम पर मोल. लगभग ये मोलर मास हमारा आता है, राइट? सो दिस एबनॉर्मेलिटी इन द मोलर मास अराइजेस ड्यू टू डिसोसिएशन. अब आपको समझ में आया कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन का क्या रोल है. डिसोसिएशन होने की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्रीज देखा गया और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने की वजह से मॉलिकुलर मास क्या हो गया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हुआ तो मॉलिकुलर मास हो गया हाफ. तो जैसे कि हमने डिसोसिएशन को समझने का कोशिश किया एक एग्जांपल से, नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल फॉर एसोसिएशन आल्सो, राइट? सी, इफ वी टेक द एग्जांपल फॉर एसोसिएशन, इफ वी आर टेकिंग benzoic acid. So when 2 moles of benzoic acid are taken, they form hydrogen bond between them by intermolecular hydrogen bonding and they undergo association when they dissolved in the solvent. Solvent में dissolve करने पे ये अब यहाँ आप देखो 2 का क्या हो जा रहा है? वो हाफ हो जा रहा है, राइट? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हाफ होगी और मॉलिकुलर मास या एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास की वैल्यू क्या होगी? डबल, राइट? क्योंकि आपको मालूम है कि इनवर्स रिलेशन होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में की वैल्यू में और मॉलिकुलर मास के वैल्यू में, राइट? तो दोनों ही केस में आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन के वजह से द एबनॉर्मेलिटी इन द मॉलिकुलर मास अराइजेस. नाउ we will come to the next topic, that is Van't Hoff factor. What is Van't Hoff factor and how it is used? So Van't Hoff factor को ऐसे समझो आप, this Van't Hoff factor is used to consider the fact that the solutes may associate or dissociate in the solvent. So I can be, the value of I can be the ratio of normal molar mass by
abnormal molar mass. I can be total number of moles after association or dissociation divided by total number of moles before association और dissociation. या फिर हम इसको कह सकते हैं observed colligative property upon normal value of colligative property. So I को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तब I का यूज क्या है? इट इज टू कंसीडर दैट द सॉल्यूट्स में एसोसिएट और डिसोसिएट. अब इसका सिग्निफिकेंस कैसे आएगा भाई? ये देखो, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए इक्वेशंस लिखे थे, राइट? फॉर एग्जांपल मैंने डेल्टा टीएफ के लिए लिखा डेल्टा टीएफ के लिए लिखते थे हम केएफ इंटू एम. बट वी कैन कंसीडर कि ये जरूरी नहीं है ना कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हो सॉल्यूट. सो इफ इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर, सो डेल्टा टीएफ कैन बी रिटन एज आई केएफ इंटू एम टू कंसीडर द इलेक्ट्रोलाइट्स में एसोसिएट और डिसोसिएट. वैसे ही डेल्टा टीबी will be equal to IKB into M, where M is the molarity, and P10 minus P1 upon P10 is equal to IX2, where X2 is the mole fraction of the solute, right? So in this way, using the Van 't Hoff factor to consider the association or dissociation of the solute, the colligative properties, the value of the colligative property is modified, right? Next, using this we can also calculate the degree of association or degree of dissociation. पहले हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि किस फॉर्मूले से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सी, if I consider 1 mole of a solute A which is breaking down to give N1 mole of A plus N2 mole of B plus N3 mole of C and so on, right? A एक सॉल्यूट है जो कि डिसोसिएशन हो रहा है जिसका सॉल्वेंट के अंदर, राइट? और इसका हमने कितना लिया है? 1 मोल. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम मान लेते हैं अल्फा, राइट? सो जो मोल्स बचेगा आफ्टर डिसोसिएशन, द लेफ्ट आउट मोल्स विल बी 1 माइनस अल्फा होगा. इस तरफ बचा हुआ मोल्स, द लेफ्ट आउट मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड द जनरेटेड मोल्स ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन, दैट इज एन अल्फा, राइट? अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे. वैन 't Hoff फैक्टर को हम क्या लिखते थे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को लिखने के लिए आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बाई 1. आपको पता है कि पहले स्टार्टिंग में बिफोर एसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल्स थे? 1 मोल्स थे. आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा. इन दोनों को हमने ऐड कर दिया. ध्यान देना फिर से, ये लेफ्ट आउट मोल्स है, ये जनरेटेड मोल्स ऑफ आयन है जिसमें कि अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट? अब इस आई में इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा. यहाँ से मैं अल्फा को कॉमन निकालो तो 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 ये लिख सकते हैं. इस 1 का साइड चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू एन माइनस, रब इट सो दैट आपको ये विजिबल हो अच्छे से. तो ये क्या आया था? I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1. ये कॉमन निकालने के बाद आया था, राइट? वेयर I इज द वैन 't Hoff फैक्टर, राइट? अब 1 का साइड चेंज करें तो अल्फा इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू I माइनस 1, वेयर I इज द सेम वैन 't Hoff फैक्टर, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आयन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब अल्फा निकालना है तो इसका साइड चेंज कर दे तो I माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 होगा कि नहीं, राइट?
सी स्टूडेंट, अब हम एक फाइनल फॉर्मूले तक आ चुके हैं जिससे हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, राइट। अब आपको मालूम है कि I की वैल्यू अगर ना दी हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या क्या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, राइट। इसको यहाँ मैं पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, mc अपॉन mo माइनस 1 by n minus 1, that becomes mc minus mo by mo into n minus 1. So this is the final formula to calculate the degree of dissociation, where mc is the normal or calculated molecular mass, mo is the abnormal or observed molecular mass, n is the number of ions that are generated. तो इस इक्वेशन का यूज करके हम इजिली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक पहुंच सकते हैं। अब आपको आंसर इजिली मिल गया होगा कि ये एबनॉर्मेलिटी क्यों होती है। एबनॉर्मेलिटी तब होती है जब पर्टिकुलर सॉल्यूट जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर या तो एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, तब होता है ऐसा। और एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों का एस्पेक्ट हम समझ चुके हैं, राइट। सो जैसे कि हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट किया, वैसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। इन दिस लेक्चर आई होप दैट you have understood the topic which I have explained. In the next lecture we will dedicate the whole lecture for the explanation of degree of association and the numericals related to this topic and the whole chapter, and finally we will close the chapter by performing the lecture of 30 to 35 minutes. So I hope you have understood all the topics. This much for today's lecture, students. I hope it has gone through your mind well, and abnormality in molecular mass, that is now clear to you. So this much for this lecture. Thank you and have a nice day.